Good morning, student. Today we are going to solve some important numerical of NCERT book. We take chapter 2, electrostatic potential and capacitance. In this chapter, we take firstly example number 2.1. The first part is that calculate the potential at point P due to charge of 4 into 10 raised to minus 7 coulomb located at 9 centimeter away. तो इसमें सबसे पहले हम गिवन डाटा क्या है इसको देखेंगे. तो गिवन डाटा इज दैट 4 into 10 raised to minus 7 coulomb. It means charge 4 into 10 power of minus 7 coulomb charge located at 9 centimeter. Means it will be the distance 9 centimeter. 9 centimeter converted into meter because all units are in same system of unit. It will be 9 into 10 raised to of minus 2 meter. Meter में convert करना होगा. And what will we find out? Calculate the potential. Means to find V solution. The formula for V potential due to point charge. Potential due to point charge हमने theory part में देखा है. Potential due to point charge is given by 1 upon 4 by epsilon naught Q upon R. That means the value of 4 pi epsilon naught is directly we can write 9 into 10 raised to 9. Now we put the value of Q and R. The value of Q 4 into 10 power minus 7 and value of R 9 into 10 raised to up minus 2. After solving, easily we can find its value 9 to 9 cancel and powers cancel, then we get 4 into 10 power 4 volt. It will be the potential at a distance of R. Now its second part is that it is a first part A and second part is that obtain the work done in bringing a charge 2 into 10 raised to minus 9 coulomb from infinite to that point P. P पॉइंट पे इस चार्ज को लाने में कितना वर्क डन होगा. तो आपको ये भी थ्योरी पार्ट में हमने किया है कि वर्क डन इक्वल टू Q into V. Why? Because the formula for potential in the terms of work is given by V equal to W by Q. From this formula we can write W equal to Q into V. So simply we put the value of Q. Value of Q is it. This charge is to be taken. Value of Q 2 into 10 power minus 9 and value of V. That means in this potential 4 into 10 raised to 4. After solving, we get 8 into 10 raised to minus 5 joule. Again, in the question asked, does the answer depend on the path along which the charge is brought? क्या जो वर्क है इस पाथ पे डिपेंड करेगा? तो आपका आंसर होगा नो. वर्क नॉट डिपेंड ऑन पाथ. नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ. पाथ पे डिपेंड नहीं करता. क्यों नहीं करता? तो आपको फार्मूला मालूम है W इक्वल टू Q इंटू V. तो पोटेंशियल नॉट डिपेंड ऑन पाथ. Work done depend on V and V not depend on the path. It depend only initial and final position. कि इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, फाइनल पॉइंट पे उसका पोटेंशियल क्या है, इस पे डिपेंड करता है, ना कि इसके पाथ पे डिपेंड करता है. तो जब पोटेंशियल पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा तो कंफर्म है कि वर्क डन भी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा. दैट मीन आंसर विल बी नो. वर्क डन नॉट डिपेंड ऑन द पाथ. Now we take next numerical example number 2.2 is that two charges 3 into 10 power minus 8 minus 2 into 10 power minus 8 coulomb located 15 centimeter apart. तो सबसे पहले हम साथ में क्वेश्चन भी पढ़ें और गिवन डाटा भी लिखते जाएं. गिवन डाटा क्या है कि दो चार्जेस हैं. तो सपोज हम दो पॉइंट कंसीडर किया, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. पॉइंट ए पर चार्ज है 3 into 10 power minus 8 coulomb and at a point
B -2 into 10⁻⁻8 कूलम, सेपरेटेड बाय 15 सेंटीमीटर अपार्ट। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है। नाउ अब क्वेश्चन में क्या करना है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। मीन्स ये है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में किस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा या लाइन ज्वाइनिंग में कहाँ होगा। तो फर्स्ट केस हम कंसीडर कर रहे हैं कि लेट P is a point at distance x from A। यहाँ पर एक पॉइंट P लिया है और इस पॉइंट से वो x डिस्टेंस पे है। इसका मतलब ये हुआ कि P से B की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 15 - x हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 15। हमको P पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल जीरो है ये कंसीडर कर लिया हम कि एट व्हाट पॉइंट, तो सपोज वी टेक पॉइंट P at a distance x where potential is zero, potential is zero हमने कंसीडर किया। अब पोटेंशियल जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्यों होगा, तो ड्यू टू दिस चार्ज एंड ड्यू टू दिस चार्ज। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज ऑन A प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज ऑन B, the sum of potential will be zero according to this consideration। अब हम ये कहेंगे कि पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू A, पोटेंशियल इस पॉइंट पर इस चार्ज के कारण कितना होगा, तो बड़ा सिंपल है। आपको मालूम है फार्मूला कि पोटेंशियल का फार्मूला होता है, अगर हम 1/4πε0 की वैल्यू लिख लें तो 9 × 10⁹ Q/R ये फार्मूला होता है। तो इन दोनों में स्टेप्स क्या आएंगी, 9 × 10⁹ कॉमन निकाल लिया, इसमें Q/R, Q/R तो Q चार्ज कितना है 3 × 10⁸ -8, R की प्लेस पे डिस्टेंस आएगी वाली, मीन्स x हो जाएगी, प्लस B का चार्ज कितना है तो -2, माइनस साइन को यहाँ कंसीडर करना है। ध्यान रखिए पोटेंशियल के समय में जब हम इंटेंसिटी और फोर्स लेते हैं तो ओनली मैग्नीट्यूड लिखते हैं। अगर ये इंटेंसिटी कैलकुलेट करते या फोर्स कैलकुलेट करते तो -2 तो माइनस सिंबल यहाँ पे लेते नहीं, केवल पोटेंशियल में माइनस सिंबल कंसीडर किया जाता है। तो -10⁸ अपान ये डिस्टेंस अब कितनी होगी 15 - x हो जाएगी इक्वल टू 0। 9 × 10⁹ कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻8 कैंसिल होगा, देन वी गेट 3/x -2/15 - x इक्वल टू 0। आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, बहुत इजी है, क्रॉस मल्टीपल करके सॉल्व कीजिएगा इसको, तो सॉल्व करने पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 9 सेंटीमीटर। दैट मीन 9 सेंटीमीटर आंसर तो हुआ, पर केवल इतना ही नहीं लिखना है एग्जाम में, आपको ये लिखना है कि 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस कहाँ से है, तो फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से डिस्टेंस है। मीन्स आपने अभी यहाँ कंसिडर किया कि x इज अ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, तो आंसर विल बी पोटेंशियल will be 0 at 9 centimeter from that charge, it will be the answer। तो ये तो केस 1 हुआ कि सपोज ये पॉइंट इन बिटवीन बोथ चार्जेस है, तो ऐसा हुआ। सपोज ये चार्ज एक्सटेंडेड लाइन पे आगे होता, एक्सटेंडेड लाइन पे आगे होता मीन्स क्या हुआ कि सपोज ये पॉइंट P यहाँ ना होकर यहाँ पे होता, और हम अगर इस डिस्टेंस को, अब मैं यहाँ B के लिए सेकंड डायग्राम बना रहा हूँ कि ये पॉइंट A हुआ, ये पॉइंट B है जो प्रीवियस हमने जो मेजर किया था, दोनों बीच की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। और P पॉइंट यहाँ पर, और ये P पॉइंट फर्स्ट चार्ज से x डिस्टेंस पे, तो B पॉइंट से कितना होगा वो x - 15 डिस्टेंस होगी, टोटल डिस्टेंस x है, तो ये B पॉइंट से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x - 15। तो इस सिचुएशन में
ये जो इक्वेशन है वो कैसा फॉर्म होगा, सिंपली यही आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यही इक्वेशन लिखना पड़ेगा, 3/x माइनस 2/x-15 आएगा, केवल ये टर्म्स एक्सचेंज हो जाएगी, इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को अब जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 45 सेंटीमीटर आती है, 45 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हुआ आप देखें कि ये से 45 सेंटीमीटर आया, दैट मीन बी पॉइंट से उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन सेकंड था। नाउ वी टेक अनदर क्वेश्चन ऑफ इन योर एनसीईआरटी बुक, एग्जांपल नंबर 2.4. It is an important question. 4 charges are arranged at the corner of a square ABCD. Here we take a square ABCD, एक ये स्क्वायर है, ऑफ साइड D, इसके चारों साइड D डिस्टेंस के, as shown in figure. A point A, find the work done, find the work required to put up together this arrangement. क्वेश्चन में ये फर्स्ट पार्ट हमको ये सॉल्व करना है कि हम यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, प्लस क्यू चार्ज पुट अप हियर अकॉर्डिंग टू डायग्राम, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे है, यहाँ फिर से प्लस क्यू है, यहाँ अगेन माइनस क्यू चार्ज है। तो इन चार्ज को पुट करने में कितना वर्क डन किया गया होगा वो निकालना है। तो डियर स्टूडेंट, हमको 1 बाय 1 करना है। चार्ज एक साथ पुट अप नहीं हुए हैं, पहले चार्ज ए पॉइंट पे रखा, उसके बाद प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा होगा, फिर माइनस क्यू चार्ज यहाँ लाया, फिर प्लस क्यू चार्ज इस पे पुट किया, माइनस क्यू चार्ज इस पे पुट किया। तो हम लोग इंडिविजुअल वर्क निकालेंगे कि फर्स्ट चार्ज रखने में क्या वर्क डन हुआ होगा, देन माइनस क्यू चार्ज बी पॉइंट पे रखने पे अब वर्क डन क्या हुआ, सी पर कितना वर्क हुआ, इस पे कितना वर्क हुआ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें कि वर्क डन W to put the plus Q charge at point A. Suppose W1 is the work done to put the charge plus Q at point A. Therefore, W1 will be 0. Why W1 will be 0? Because when first charge is put up here, there is no potential. यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं था, यहाँ कोई चार्जेस नहीं थे, तो फर्स्ट चार्ज जब हम पुट करते हैं तो पोटेंशियल जीरो होगा, तो पोटेंशियल जीरो होने के कारण वर्क डन जीरो हुआ। तो वर्क डन एट पॉइंट ए विल बी जीरो। नाउ अब हम बी पॉइंट पे रखेंगे, तो W2 अब इस चार्ज को यहाँ पुट कर रहे हैं बी पॉइंट पे, माइनस क्यू चार्ज कहीं बाहर से लाया, बी पॉइंट पे पुट किया, तो इस चार्ज को पुट करने में वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन का फार्मूला है, आपको मालूम है कि वर्क डन इक्वल टू होता है Q इंटू वी। तो हमने किस चार्ज को लाया है, माइनस क्यू को, तो माइनस क्यू लिख दिया। अब वी, तो वी पोटेंशियल यहाँ पे होगा क्या, तो बिल्कुल होगा, इस चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप होगा। आपको मालूम है कि ये पॉइंट चार्ज है, अब ये पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल डेवलप होगा, और वो कितना होता है, तो मालूम है हमें, ये माइनस क्यू तो एज इट इज लिखा, वी की वैल्यू 1/4πε0 क्यू अपान, तो क्यू अपान किस पोटेंशियल के कारण चार्ज है, ये प्लस क्यू के कारण, तो स्मॉल क्यू लिखें, क्यू अपान आर, आर इज द डिस्टेंस। तो आपके यहाँ पे डिस्टेंस देखें इस पॉइंट की, यहाँ इसके कारण जो पोटेंशियल है तो डी डिस्टेंस है, तो ये अपान में क्या आ जाएगा, डी। तो इट इज द वर्क डन टू पुट द माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट बी। नाउ वी सी, वी फाइंड आउट W3 दैट मीन टू पुट द चार्ज एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पे चार्ज रखने में कितना वर्क डन होगा, तो सी पॉइंट पे चार्ज रखेंगे, कितना चार्ज रख रहे हैं, क्यू, क्यू इंटू वी। अब पोटेंशियल यहाँ पे कितना डेवलप हो चुका है, तो आप देखें पहले से इस पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज है, इसके कारण यहाँ पोटेंशियल डेवलप होगा और इसके कारण पोटेंशियल डेवलप होगा। तो इस क्यू पॉइंट पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो ड्यू टू ए पॉइंट और ड्यू टू बी पॉइंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, पोटेंशियल
इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू बी, इस पॉइंट पर। तो Q पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू ए पॉइंट के कारण पोटेंशियल कितना होगा? तो डियर स्टूडेंट, यू नो दैट दिस साइड इज D, देयरफॉर दैट डायगोनल विल बी √2 इंटू डी। ये √2 इंटू डी डिस्टेंस होगी। सी पॉइंट की इसकी जो डिस्टेंस होगी वो √2 इंटू डी होगी। तो यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 क्यू। इसका इसके कारण पोटेंशियल ले रहे हैं ए का, तो उसका चार्ज कितना है? क्यू है। और अपान में जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी होगी? √2 इंटू ऑफ डी। सिमिलरली पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू पॉइंट बी, इस पॉइंट बी के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? तो 1/4πε0 माइनस क्यू, माइनस सिंबल लेना है आपको, ये बिग ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दीजिए। माइनस सिंबल क्यों लिया? क्योंकि बी पॉइंट के पोटेंशियल यहाँ पे जो डेवलप हुआ है तो ये माइनस चार्ज के कारण है, और इसकी डिस्टेंस आ जाएगी डी। ये W3 आ गया। इसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा? Q इंटू V, तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा Q स्क्वायर, Q कॉमन ले लिया, Q स्क्वायर अपान 4πε0, D भी कॉमन आ रहा है, यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 1/√2 माइनस 1, it will be the potential. Okay, it will be the potential. सिमिलरली इसको भी हम सिंप्लीफाई करके ऐसा रख सकते हैं कि Q स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 या Q स्क्वायर अपान 4πε0 इंटू डी। अब हम ये माइनस क्यू चार्ज को डी पॉइंट में रखने में कितना वर्कडन होगा उसको निकालना है। तो बहुत सिंपल है, W4 मीन्स क्या हुआ? माइनस क्यू चार्ज को रख रहे हैं, तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला आपको अडॉप्ट करना है Q इंटू वी वाला। तो उसमें चार्ज कितना? माइनस क्यू और इंटू वी। तो अब पोटेंशियल वहाँ पे कौन सा डेवलप हुआ उसको देखें। तो इस डी पॉइंट पर पोटेंशियल इन तीनों चार्ज के कारण लगेगा, दैट प्लस क्यू चार्ज, दैट माइनस क्यू चार्ज, दैट प्लस क्यू चार्ज। तो इसको हम लोग सिंबॉलिक टर्म्स में ऐसा लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट डी ड्यू टू ए, पोटेंशियल एट डी ड्यू टू बी, पोटेंशियल एट डी ड्यू टू सी, माइनस क्यू। अब वैसे यहाँ पर भी सबके फार्मूले में 1/4πε0 आना ही है, ठीक। तो 1/4πε0 हमने कॉमन लिया। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा इसके लिए? तो Q अपान R, तो Q चार्ज, तो इसका चार्ज क्या है? Q है A पॉइंट में। R तो उसकी जो D से डिस्टेंस है D पॉइंट से वो स्मॉल d है, तो सिंपली आप Q/D लिख दिया इसको, Q/D। इसके बाद B पॉइंट पर देखें तो B पॉइंट पे क्या आ जाएगा? माइनस क्यू चार्ज है तो प्लस किया, और ये माइनस क्यू अपान डिस्टेंस हो जाएगी, डायगोनल डिस्टेंस होगी तो √2 इंटू डी। इसके बाद C पॉइंट की डिस्टेंस अगेन कितनी है? C पॉइंट पर चार्ज है प्लस क्यू, तो Q अपान डिस्टेंस उसकी D। कौन सी डिस्टेंस? ये डिस्टेंस D। अब इसको आपने सॉल्व किया तो क्या होगा? Q सबके कॉमन निकाल लो, माइनस है तो ये माइनस क्यू स्क्वायर अपान 4πε0 डी भी कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? Q/D कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 माइनस 1/√2 प्लस 1, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस क्यू स्क्वायर अपान 4πε0D 2 माइनस 1/√2, ये W4 हो गया। ये था वर्क डन।
आ गया। देयरफॉर टोटल वर्क डन, total work done, total work done will be W equal to W1 plus W2 plus W3 plus W4। सबकी वैल्यू पुट करें तो आप देखें सबकी वैल्यू में कुछ टर्म्स कॉमन है। क्या कॉमन है? तो सभी में क्यू स्क्वायर अपान 4πε0 इंटू डी कॉमन है। तो W1 में क्या हुआ? क्यू स्क्वायर अपान W1 की वैल्यू चेक करें यहाँ पे, क्यू स्क्वायर अपान 4πε0, केवल माइनस सिंबल आ गया तो आप यहाँ पे -1 लिख दीजिए। प्लस W2 के लिए चलें तो W2 में क्या आया है? W2 में है 1/√2 -1। इसके बाद W2 की वैल्यू है, W2 में क्या आया है? W2 की वैल्यू है, ये सम मिस्टेक, वैल्यूज W1 की वैल्यू 0, वैल्यू ऑफ W2 की वैल्यू कितनी आ गई? -क्यू स्क्वायर अपान 4πε0d प्लस W3 क्यू स्क्वायर अपान 4πε0t 1/√2 -1 एंड W4 -क्यू स्क्वायर अपान 4πε0d 2 -1/√2। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ टर्म्स कॉमन निकल जाएंगी। जैसा आपने देखा कि क्यू स्क्वायर अपान 4πε0t इज अ कॉमन, देन यहाँ केवल -1 हुआ, प्लस 1/√2 -1 इस सेकंड स्टेप के लिए, एंड द थर्ड स्टेप प्लस माइनस ड्यू टू दिस माइनस 2 -1/√2 क्यू स्क्वायर अपान 4πε0d। अब इसको सोल्व किया तो इसमें -1 -2 एंड दैट -2 -4। अब ये दो स्टेप बच गई, 1/√2 1/√2, तो 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2 means it will be +√2. Okay, it will be the total work done to put all charges at the corner of side. And the second part of the question is that a charge Q0 is brought at the center E। अब हमको यहाँ पे एक चार्ज Q0 चार्ज यहाँ पर फिक्स करना है, तो इसके लिए कितना वर्क डन करना होगा? तो बड़ी सिंपल बात है, जब आप यहाँ पे कोई चार्ज पुट करते हैं तो वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन का फार्मूला सिंपल मालूम है, Q इंटू V। तो आप चार्ज Q के प्लेस पे क्या लिखोगे? Q0। यहाँ Q0 चार्ज रखा है तो Q के प्लेस पे Q0 आ जाएगा। पोटेंशियल, तो E पॉइंट पर कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ उसको देख लो। तो क्या होगा? E पॉइंट पे पोटेंशियल डेवलप होगा ड्यू टू A पॉइंट A चार्ज, ड्यू टू चार्ज ऑन B पॉइंट, ड्यू टू चार्ज ऑन C पॉइंट, ड्यू टू चार्ज ऑन D पॉइंट, और यहाँ पर चार्ज इतना पोटेंशियल डेवलप होगा। तो हम इसको ऐसा सॉल्व करें कि B पार्ट क्वेश्चन पे, सपोज W इज द वर्क डन, तो Q0 चार्ज हो गया और टोटल पोटेंशियल सेंटर पे कितना डेवलप होगा? तो सेंटर पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो पोटेंशियल एट पॉइंट ई सेंटर पॉइंट ई लिया है, तो ड्यू टू पॉइंट ए होगा, पॉइंट बी, पोटेंशियल एट पॉइंट ई ड्यू टू पॉइंट सी, पोटेंशियल एट पॉइंट ई ड्यू टू डी। सिंपल। अब आप ये देखें Q0 है, पोटेंशियल सबके फार्मूले में 1/4πε0 आता है, तो हमने पहले से ही 1/4πε0 कॉमन निकाल लिया। अब ब्रैकेट क्वांटिटी क्या होगी? तो पोटेंशियल, और एक चीज़ ध्यान रखें, जो डिस्टेंस है
सेंटर से सभी कार्नर की सेम डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये जो इतनी जो डिस्टेंस है वो d/√2 होगी। क्यों? क्योंकि इतनी पूरी डिस्टेंस √2 इंटू डी है, तो √2 इंटू डी का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, d/√2। तो d/√2 इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम ईच कॉर्नर। तो जो हम डिस्टेंस यूज करेंगे पोटेंशियल के फार्मूले में वो d/√2 लेंगे। तो अब फार्मूला क्या हो जाएगा, सबके फार्मूले में अपान में √2 इंटू डी आएगा। तो ए पॉइंट पर चार्ज कितना है, प्लस क्यू, तो ये हो जाएगा q/d/√2। बी पॉइंट का पोटेंशियल है -q, तो अपान d/√2। इसका चार्ज q है तो ये हो जाएगा d/√2। ये चार्ज होगा -q d/√2। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि जो अंदर की टोटल टर्म्स है वो जीरो हो रही हैं। एक प्लस है तो एक माइनस है, एक प्लस है तो माइनस, मीन्स टोटल वर्क डन विल बी जीरो। देन द आंसर इज जीरो टू पुट द चार्ज एट पॉइंट ई पॉइंट पे चार्ज रखने में टोटल जीरो हो जाएगा। नाउ वी टेक अनदर न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर 2.5 is that in the first part determine the electrostatic potential energy of a system consisting of two charges 7 microcoulomb and 2 microcoulomb placed at coordinate -9 centimeter 0 0 and 9 centimeter 0 0 respectively। that mean ये जो चार्ज हैं ये एक्स एक्सिस पे ही होंगे, इनके वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट जीरो हैं। मीन्स अगर इसको हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट होगी। यहाँ पर ये ओरिजिन हो जाएगा, ओरिजिन से यहाँ एक जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होगा इसका -9 सेंटीमीटर एंड 0 0 कोऑर्डिनेट होंगे वाई और जेड एक्सिस के, इसका होगा +9 एंड 0 0 कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक, हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट ए वेरी सिंपल, वी हैव टू फाइंड आउट यू। गिवन डाटा चार्जेस Q1 की वैल्यू है, तो पहले गिवन डाटा नोट कर लें। गिवन डाटा इस पे है, Q1 की वैल्यू है 7 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम दैट मीन 10⁻⁻6 कूलम एंड Q2 equal to -2 into 10⁻⁻6 after conversion microcoulomb into the coulomb। एंड डिस्टेंस, अब दोनों के बीच की डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी इसकी, जो एक्स एक्सिस है राइट एंड लेफ्ट है, तो टोटल डिस्टेंस होगी 18 सेंटीमीटर। कन्वर्टेड इनटू मीटर वी गेट 18 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। एंड फार्मूला, क्या फार्मूला यूज करेंगे, u निकालना है, तो u का फार्मूला होता है 1/4πε0 की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो Q1 और Q2 और R की वैल्यू पुट कर देना, 9 इंटू 10⁻9, वैल्यू ऑफ Q1 7 इंटू 10⁻⁻6 एंड वैल्यू ऑफ Q2 -2 10⁻⁻6 अपान R स्क्वायर 18 इंटू 10⁻⁻2। बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व करने पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी टोटल आएगी, माइनस में आएगी ड्यू टू दैट माइनस, और उसकी वैल्यू हो जाएगी -0.7 जूल। ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। सेकंड पार्ट बी पार्ट, ये पार्ट ए था, और इसके पार्ट बी में लिखा हुआ है how much work is required to separate two charges infinitely away from each other। अब इन दोनों चार्ज को, एक सिस्टम में है ये दोनों चार्ज, इनको इनफाइनाइटली सेपरेट करना है। तो इनफाइनाइटली सेपरेट करना है तो कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन दैट मीन हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है सेपरेशन के लिए। तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी आएगी या वर्क डन के टर्म्स में लिखें तो वर्क डन इक्वल टू, इसको सिंबॉलिक लिख सकते हैं U2 माइनस U1। अब यहाँ U2 और U1 क्या है, तो U2 का मतलब हुआ कि हमके
उसको इन्फिनिटी डिस्टेंस पे जो एनर्जी है, सेपरेट करने में इन्फिनिटी में जो एनर्जी होगी वो लिखना है, और उसकी जो इनिशियल एनर्जी U1 है, तो U1 की वैल्यू यहाँ पे देखें कि उसकी जो इनिशियल सिस्टम की एनर्जी है वो है U इक्वल टू -0.7, तो U1 के प्लेस पे U लिखना, और U2 दैट मीन इन्फिनिटी सेपरेशन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस टाइप से इसको सॉल्व करें। अब U इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी में ले जाने में वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन 0 होगा, देयर इज नो पोटेंशियल, तो U इन्फिनिटी तो की वैल्यू 0 हो गई, और माइनस यू, और यू की वैल्यू आपको मालूम है क्या, कितना है, -0.7, दैट मीन इट विल बी 0.7 जूल, मीन्स 0.7 जूल work is required to separate two charge infinitely away from each other। अब इसका थर्ड पार्ट है जो एक क्वेश्चन में आया नहीं है, थर्ड पार्ट इसमें और एक लिखा हुआ है। थर्ड पार्ट ये है कि सपोज ये जो सिस्टम है जिसमें हमने यहाँ पे 7 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है, यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है, और उनके ये कोऑर्डिनेट है। अभी यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं है, ये ब्रैकेट में लिखा भी है क्वेश्चन में, विथ नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड हियर। सपोज अगर इसको कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए सिस्टम को, तब टोटल एनर्जी, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिकल एनर्जी क्या होगी, ऐसा इसका थर्ड पार्ट है। आप एनसीईआरटी बुक में सॉल्यूशन देखिएगा, डायरेक्टली किया हुआ है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल सॉल्व करके दे रहा हूँ। थर्ड पार्ट में क्या करना है कि ये जो सिस्टम है, सिस्टम में यहाँ पे ओरिजिन लिया, फिर से मैंने वही डायग्राम को बना रहा हूँ। यहाँ पर जो चार्ज है 7 माइक्रोकूलम, इसके कोऑर्डिनेट है -9 0 0, एंड इसके कोऑर्डिनेट हैं 9 0 0। अब इसको हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट अप कर दिया, सपोज यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E इक्वल टू A इंटू 1/r², वेयर the A is a constant and its value is 9 into 10 power 5 सेंटीमीटर -2, सॉरी कूलम पर मीटर स्क्वायर, इट्स वैल्यू यहाँ से आ जाएगी एक ही यूनिट, न्यूटन पर कूलम से कूलम्स इंटू कूलम्स पर मीटर स्क्वायर, ये गिवन डाटा दिया हुआ है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस सिस्टम को पुट अप कर दिया है, इस सिस्टम को रखे हैं, तो अब इसकी एनर्जी कितनी होगी। अब आपको मालूम है कि पहले से इसके पास एनर्जी कितनी है, -7 जूल की है। अब आप अगर इसको इस इंटेंसिटी में रखेंगे, इंटेंसिटी के टर्म्स में दिया है, तो इंटेंसिटी में रखेंगे तो यहाँ पर इस चार्ज पे भी पोटेंशियल डेवलप होगा, इस चार्ज पे भी पोटेंशियल डेवलप होगा, इस इंटेंसिटी के कारण। तो कितना पोटेंशियल डेवलप होगा उसको पहले निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल क्या डेवलप होगा, तो उसके लिए आपको ये मालूम है इंटेंसिटी और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। तो हमने थ्योरी पार्ट में देखा है, थ्योरी पार्ट में क्या देखा है कि इंटेंसिटी इज निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, E इक्वल टू -dV/dr। अब इस पार्ट को हम पहले पोटेंशियल की वैल्यू निकालें, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि dV/dr इक्वल टू आप -E। दोनों साइड अगर इंटीग्रेशन कर दें, तो इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dr, dV को dr को इस साइड ट्रांसफर कर लिया, और उसके बाद में इंटीग्रेशन किया, तो इंटीग्रेशन ऑफ dV वी गेट V, और यहाँ पर माइनस, और E की वैल्यू कितनी पुट करना है, ये क्वेश्चन में दिया है A/r² इंटू dr, एक कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, और इंटीग्रेशन r⁻² इंटू dr होगा, तो इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगी, एक पावर इंक्रीज होती है इंटीग्रेशन में, तो A आफ्टर इंटीग्रेशन ये आ जाएगा 1/r, माइनस में आएगा, तो फाइनल वैल्यू इसकी हो जाएगी A/r, मीन्स पोटेंशियल कितना हो गया, A/r। A/r इज द फाइनल पोटेंशियल। देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आफ्टर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड will be U1 plus U2 plus U। अब ये U1 U2
और U क्या है, तो U तो मालूम है कि U उस सिस्टम की एनर्जी थी इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो ये चार्ज पर पोटेंशियल डेवलप हुआ, तो एक एनर्जी स्टोर यहाँ पे होगी, दूसरी एनर्जी इस चार्ज पे स्टोर होगी। तो U1 इज द एनर्जी स्टोर्ड बाय दैट चार्ज, U2 इज द एनर्जी स्टोर्ड बाय दैट चार्ज। तो फिर से हमें फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, तो U1 की वैल्यू आ जाएगी, U का फार्मूला होता है Q इंटू वी, तो ये Q1 चार्ज था फर्स्ट वाला, उसका पोटेंशियल सपोज करें V1 लिया, दूसरा चार्ज Q2 है, उसका पोटेंशियल V2 लिया, और U को एज इट इज लिखा दिया हमने। ओके, Q1 की वैल्यू कितनी है, तो Q1 की वैल्यू है 7 इंटू 10⁻⁻6, और V1 की वैल्यू, तो V का फार्मूला क्या है, V इक्वल टू A बाय R, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A बाय R1, A बाय R1, R1 डिस्टेंस आ जाएगी। तो आप ओरिजिन से देखें, ओरिजिन से देखना है तो इसकी भी डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर है और इसकी भी डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर है। तो R की वैल्यू दोनों केस में कितना होगा, A भी 9 होगा और A भी 9 होगा। तो हम यहाँ पर चल रहे हैं A बाय R, तो A की वैल्यू भी पुट कर देते हैं डायरेक्टली, तो A की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁻5, और R की डिस्टेंस हो गई 9 सेंटीमीटर में था तो -2 कर लिया, प्लस Q2, तो Q2 आपको मालूम है चार्ज कितना था, सेकंड चार्ज जो है वो -2 माइक्रोकूलम था, तो यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम है तो -6 हो गया। और पोटेंशियल पोटेंशियल ओके, पोटेंशियल ड्यू टू दैट चार्ज, पोटेंशियल V2, तो V2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, A अपान R, तो A की वैल्यू फिर से वही लिखें 9 इंटू 10⁻5, और R की वैल्यू 9 इंटू 10⁻², और प्लस U, तो प्लस U की तो वैल्यू मालूम है कि -0.7 जूल है। अब इसको हम सिंपल है, 9 से 9 कैंसिल हो गया, और इसको सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करने पे 70 आएगा, इसको सॉल्व करना -20 आ जाएगा माइनस सिंबल से लेके, और ये -0.7, तो सिंपल आंसर आ जाता है 49.3 जूल। तो ये सिंपल सॉल्यूशन है जो एनसीईआरटी में डायरेक्ट किया हुआ है। डियर स्टूडेंट, पहले आप ई की वैल्यू दिया है और इसको डायरेक्ट अप्लाई किया हुआ है, तो आप इस टाइप से इसको सॉल्व करिएगा ये क्वेश्चन को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, next example 2.6, a molecule of substance has a permanent electric dipole moment of magnitude 10 raised to -29 कूलम मीटर। अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल पर इतना डाइपोल मोमेंट है। अ मोल ऑफ this substance is polarized at low temperature by applying strong electrostatic field of magnitude 10 raised to 6 volt per meter. The direction of electric field is suddenly changed by, after polarization, the direction is changed by an angle of 60 degree. Estimate the heat released by the substance in aligning the dipole along a new direction of the field. मीन्स आपको क्या क्या गिवन डाटा दिया है इस क्वेश्चन में, देखें गिवन डाटा है डाइपोल मोमेंट ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल, आपको एक सिंगल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट दिया है, डाइपोल मोमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल, वैल्यू 10 रेज़ टू -29 कूलम इनटू मीटर। और आप ये देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड यहाँ पर दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मतलब E की वैल्यू है, E की वैल्यू कितनी दिया है 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। डियर स्टूडेंट, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की दो यूनिट मिलेंगी, एक तो न्यूटन पर कूलम होती है और एक वोल्ट पर मीटर होती है। ये रिलेशन से जो अभी हम निगेटिव ग्रेडियंट वाला यूज़ किए उससे आ गया है। वोल्ट पर मीटर जब भी देखा आप तो उसको E लिखिए, या न्यूटन पर कूलम। इनिशियल वो क्या थे, पैरेलल अरेंज थे, तो जो θ1 की वैल्यू थी वो 0 डिग्री थी, पर आफ्टर पोलराइजेशन इट्स
एंगल बिकम 60 डिग्री, तो आप थीटा टू आप 60 डिग्री लेना। कितनी हीट रिलीज हुई उसको देखना है। तो हीट रिलीज में क्या होगा, डायपोल मोमेंट होने में वर्क डन हुआ है। तो हमने थ्योरी पार्ट में देखा था कि डायपोल रोटेशन में कितनी एनर्जी या कितना वर्क डन होता है और उसका फार्मूला डिराइव किया था। बट अभी जो इस क्वेश्चन में डायपोल मोमेंट दिया है वो सिंगल मॉलिक्यूल का दिया है, और हमको क्वेश्चन में ये बोला है कि 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज पोलराइज, मीन्स एक मोल में टोटल कितने सब्सटेंस है वो देखना होगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल, तो सबको मालूम है कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये है 6 × 10⁻23। तो देयरफॉर टोटल डाइपोल मोमेंट या नेट डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 6 × 10⁻23 टोटल मॉलिक्यूल्स इंटू एक डाइपोल का कितना है 10⁻10⁻29। दैट मीन ये हो जाएगा 6 × 10⁻6 -6 कूलम इंटू मीटर। ओके, अब हमें टोटल एनर्जी निकालना है। तो इनिशियल एनर्जी कितनी थी वो देख लेते हैं। तो इनिशियल एनर्जी यू का फार्मूला होता है -PE cos थीटा। पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में लेंगे तो PE cos थीटा, ये फार्मूला है। तो चेंज इन एनर्जी इक्वल टू U2 - U1। तो U2 - U1 क्या हो जाएगा, इस फार्मूले से लेते हैं तो -P कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा cos θ2 - cos θ1। अब आप P की वैल्यू रखो, ये वाली E की वैल्यू है 10⁻6, cos θ2 तो θ2 60 डिग्री और θ1 0 डिग्री। अब इसको सॉल्व करने पे सिंपल है, सिंपल सॉल्यूशन है, तो आप देखेंगे कि 3 जूल आंसर आ जाएगा। और यही जो एनर्जी है, ये एनर्जी उस डायपोल में लॉस ऑफ एनर्जी लॉस हो रहा है। यहाँ पे 3 जूल पॉजिटिव आंसर आया है। पॉजिटिव आंसर इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है। देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी एंड दिस लॉस ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज एज अ हीट। दैट मीन कितनी हीट प्रोड्यूस होगी आपकी 3 जूल।